Everyone, now in our design of steel structure, today we are going to see our next topic or our next chapter is design of industrial building. So in this chapter we see different type of content are included in this chapter. The first is introduction, second is planning and structural framing, major component of an industrial building. So most important topic, major component of an industrial building, bracing of industrial building. So in this topic we see bracing of industrial bend in transverse directions. Then next, component of roof truss, type of roof trusses, panel point or nodal points, roof covering materials, preliminary calculations, load on a roof truss, design of purlins, orientation of purlins, distinguish between angle purlin and tubular purlin, design procedure for angle purlins, design of channel, I section purlins, design of purlin with sag rods. Now then after final is example dead load, live load, calculations, then example on design of purlins, example on design of steel roof truss, sketches related to some roof truss. So first of all, introduction, our chapter is design of industrial building. So in introduction, first, industrial building are low rise steel structures, housing, workshop or industries and characterized by their low height and absence of interior wall and partition. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या है? लो राइज स्टील, ठीक है, स्टील लो राइज में यूज़ होगा, लो राइज स्टील स्ट्रक्चर, बराबर है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? लो राइज स्टील स्ट्रक्चर, हाउसिंग, वर्कशॉप और इंडस्ट्री है एंड कैरेक्टराइज बाय देयर ओवन हाइट, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, देन आफ्टर डिफरेंट कोई स्टील स्ट्रक्चर है जो उसको हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? बाय इट्स हाइट, हाइट के हिसाब से हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे। एंड एब्सेंस ऑफ इंटीरियर वॉल एंड पार्टीशन, कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी पार्टीशन वॉल है और पार्टीशन वॉल है, उसके हिसाब से हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हम कैरेक्टराइज करेंगे। हाइट एंड एब्सेंस ऑफ इंटीरियर वॉल एंड पार्टीशंस। Usually the roof system of industrial building consists of trusses with lightweight roof covering. Nowadays new material for both cladding and roofing are available. These are lighter compared to a conventional AC and GI sheets, ठीक है। चलो, यूजुअली यानी कि द रूफ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अ ट्रसिस विथ लाइट वेट रूफ कवरिंग। कोई भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रहेगा, ठीक है, वो किससे कंसिस्ट होगा? ट्रसिस होगा, विथ ट्रसिस के साथ क्या होगा? लाइट वेट रूफ कवरिंग। जो रूफ कवर होगा वो लाइट वेट रहेगा। सो नाउअडेज न्यू मटेरियल फॉर बोथ क्लैडिंग एंड रूफिंग आर अवेलेबल, ठीक है। जो न्यू मटेरियल होगा क्लैडिंग और रूफिंग के लिए न्यू मटेरियल यूज़ होगा वो अवेलेबल रहेगा। दिस आर द लाइटर कंपेयर टू कन्वेंशनल एसी एंड जीआर शीट्स, ठीक है। ये लाइटर रहेगा किसके कंपैरिजन में? एसी एंड जीआई शीट के कंपैरिजन में। जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगा उसके ऊपर जो लाइट वेट रूफ कवरिंग करेगा वो बेटर रहेगा। However, few industrial building may be multi-story to the house. This industry, which involves some process prominently in vertical plane, more commonly industrial building have single story or a single story with a mezzanine floor to provide more working space
internal column are either all together avoided or else are very widely spaced in a big industrial building. Some few industrial building में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से लेके मल्टी स्टोरी तक. मल्टी स्टोरी यूजुअली नॉट मोर देन 4, ठीक है, 4 स्टोरी से ज़्यादा नहीं रहेगी. To house these industries which involve some process prominently in vertical plane, ठीक है, ये जो हाउस रहेगा और जो इंडस्ट्री रहेगा वो इन्वॉल्व करेगा सम प्रोसेस prominently in vertical plane. More commonly, industrial building have a single story or single story with a mezzanine floor to provide more working space. Interior column are more either all together avoided or else are very widely spaced in big industrial building. So the industrial building are classified into 2 categories. So there are 2 types of industrial building: normal or simple industrial building, special type of industrial building. There are 2 types of industrial building: normal or simple industrial building, special type of industrial building. First, normal or a simple industrial building. These are common for a short span layout. ठीक है, जो सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रहेगा वो शॉर्ट स्पान के लिए कॉमन रहेगा. दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल सिंगल स्टोरी इंडस्ट्रियल सेट्स विथ और विदाउट गैंट्री गर्डर टू हाउस वर्कशॉप्स, वेयर हाउस और फैक्ट्रीज एंड डू नॉट कंटेन इंटरमीडिएट कॉलम. ठीक है, सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या रहेगा? It is suitable for common for short span layout, simple single story industrial sets with or without a gantry girder, to house workshop, to warehouse or factories, and do not contain intermediate column. ठीक है, इंटरमीडिएट कोई कॉलम नहीं आएगा सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर. ठीक है, सिंगल स्टोरी इंडस्ट्रियल सेट रहेगा, उसमें शायद गैंट्री गर्डर होगा नहीं होगा. ठीक है, टू हाउस वर्कशॉप, वेयर हाउस और फैक्ट्री, इट इज़ द वन ऑफ द सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड मोर प्रोटेक्टेड एरिया. ठीक है, सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्रोवाइड मोर प्रोटेक्टेड एरिया. दिस बिल्डिंग रिक्वायर लार्ज एंड क्लियर एरिया. दिस बिल्डिंग रिक्वायर लार्ज एंड क्लियर एरिया अनअब्स्ट्रक्टेड बाय द कॉलम. ठीक है, सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रिक्वायर्ड अ लार्ज एंड क्लियर एरिया. ठीक है, लार्ज एंड क्लियर एरिया अनअब्स्ट्रक्टेड बाय द कॉलम. ठीक है, कॉलम नहीं रहेगी सो कॉलम का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा. द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट हेड रूम फॉर द यूज ऑफ एन ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रहेगा प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट हेडरूम. ठीक है, हेडरूम प्रोवाइड करेंगे फॉर द यूज ऑफ एन ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन. नाउ नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. सो इन अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, द स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर यूजुअली कॉल्ड एज स्टील मिल बिल्डिंग. ठीक है, एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं व्हाट इज स्टील मिल बिल्डिंग. सो इट इज़ द वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 2 टाइप्स, सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. सो इन a special type industrial building it is also called a steel mill building. These are used to house big industry in which some manufacturing process needs space with specific and control environmental condition. चलो, अब स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या रहेगा? बिग हाउस रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा? सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सम स्पेसिस नीड रहेगी विद स्पेसिफिक एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन. ठीक है, कि एटमॉस्फेयर कंडीशन की सिचुएशन के अंदर उसमें हम सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस અને થોડી જગ્યા મળશે. This may contain mezzanine floor and may be multi-story also in some portion of the total floor area.
This type consists of a trusses frame in the long dimension of the bay with a purlin framing between the uh, trusses in the short dimension. This system is used. This system is used where a long span required in a one direction is more than 21 meter, while much shorter span is acceptable in the other direction. Trusses are not likely to be economical for a span less than about 21 meter. When the roof truss is attached to and is supported on a steel column or both the end, the assembly is known as a band or a mill band or a transverse bands, and bands are braced together at intervals depending on the character of the building. This length, width, covering, exposure to band braced together from braced bay, and the space between टू कॉलम इज कॉल एयर सेल. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दो कॉलम के बीच जो रहेगी स्पेस उसको हम क्या बोलेंगे, एयर सेल. नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग. Planning and structural framing. So the planning and design of industrial building require the knowledge of the following area. ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का स्टील का एनालिसिस करना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए अबाउट साइट इंफॉर्मेशन, सॉइल कंडीशन, फ्यूचर एक्सपांशन प्लान, प्लान लेआउट एंड वर्क फ्लो, preferred bay size, crane type and capacity, availability of raw material, roofing, side cladding and wall material preferences, heating, ventilation and air conditioning equipment load, parking facility, preferred fabricators or contractors, availability of waste disposable and sanitary facility, बजट एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल. ठीक है, सो ये सब हमें जानना ज़रूरी है बिफोर गोइंग ऑन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग. साइट इंफॉर्मेशन, सॉइल कंडीशन, फ्यूचर एक्सपांशन प्लान, प्लान लेआउट एंड वर्क फ्लो, प्रीफर्ड बे साइजेस, क्रेन टाइप्स एंड कैपेसिटी, availability of raw materials, roofing, side cladding and wall material preferences, heating, ventilation, air conditioning equipment loads, parking facilities, preferred fabricators or contractors, availability of waste disposal and sanitary facilities, budget and project schedule. So the planning of an industrial building is based on a functional requirement. The planning of an industrial building is based on functional equipment, on the operation to be performed inside the building. In the planning of the particular type of industrial building, the following factors will be given into the consideration. ठीक है, डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ डिज़ाइन. द फर्स्ट इज वाइड एरिया फ्री ऑफ कॉलम, मैक्सिमम एरिया मिलेंगे, फ्री कॉलम फ्री होना चाहिए. देन लार्ज हाइट लार्ज रहना चाहिए. लार्ज डोर एंड विंडो एंड डोर लार्ज होना चाहिए. लार्ज स्पान ऑफ ट्रसिस का स्पान लार्ज रहना चाहिए. मिनिमम वेट ऑफ ट्रसिस, पर्लिन, बीम, कॉलम एक्सेट्रा. लाइटिंग, सैनिटरी अरेंजमेंट, सेफ्टी ड्यूरिंग फायर के ड्यूरिंग सेफ्टी रहना चाहिए. सो दिस फैक्टर शुड कंसिडर ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर कंसिडर बाय सिलेक्टिंग साइट फॉर द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. अब डिज़ाइन साइट कि जहाँ हमें बिल्डिंग बनाना है वो साइट कैसी होनी चाहिए. द साइट शुड बी लोकेटेड ऑन द आरटीएल रोड. ठीक है, साइट कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे नज़दीक पे आरटीएल रोड होना चाहिए. लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जैसे कि कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग तो वो हमें इजीली रॉ मटेरियल मिलना चाहिए.
फैसिलिटी लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई मिलना चाहिए। टोपोग्राफी एंड एरिया का टोपोग्राफी जानना ज़रूरी है। सॉइल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन डिज़ाइन, फाउंडेशन डिज़ाइन के द्वारा हमें सॉइल की कंडीशन मिलनी चाहिए। वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी, कि जैसे कि गार्बेज है, वेस्ट है, उसको निकालने की फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए। सफिशिएंट स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए हमें सफिशिएंट स्पेस मिलना चाहिए। स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, इंडस्ट्रीज़ को हमें इंडस्ट्रियल को हमें बढ़ाने के लिए फ्यूचर में उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए सफिशिएंट जगह मिलना चाहिए। तो ऐसे साइट होना चाहिए। सो दिस फैक्टर आर कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग।